الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إذا قرأت القول والآخرين فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الكتاب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نضل الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بالصالح ثم قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلكم وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تزينا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا تعرفون من ذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى على قوم يتبعون المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي على الذي فطرني إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظن في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أنزل ربي واجعلني من المكرمين ما أنزلنا على قوم من بعده من السماء وما كنا مؤمنين إن كانت إلا جهاد واحد فإذا هم خالدون يا سكن الإيمان آياته الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا محضرون وآيات لهم الأبصار ويعلمون ما يتقوا أياتنا وخرجنا منها فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما لكم وإليه لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نطلع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعيون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك
وآيات لهم أنهم كما خلقتم من خلق المسرور وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا كاشف لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء والله أحد إن نحن إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا الصيحة موعظة أن تعبدهم فهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من أخذنا من مرقدين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم بظلال ملائكة متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قالوا لربهم ومتى الله اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم مبين فاعبدوا من هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فأرسلوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم فلا نكال بهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نظلم ننكسه في الخلق يفنى ولا يعقلون وما يمنع الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيه ويتذكر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما يدعون أنعاما فهم لها ولهم فيها منافع مشارق أخلاق يشرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منصرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يشاء فتقر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
आगोश पे हुसैन को काहे बिठा लिया, रुखसत किया किसी को बुला लिया। पढ़ने के बाद से कभी बुरा उठा, बाद से कभी बुरा उठा। बच्चों से मुंह अपना मोड़ के, घर में सोना है बस्ती को छोड़, घर में सोना है बस्ती को छोड़ के। वसीयत है मेरी इस वक्त या इमाम, वीज़ा से मेरे बाद अदालत से लेना का, होशियार फातिमा की अमानत से सुबोशा। बेटियां तो बेटियां नजर खुदा, बेटियां तो बेटियां नजर खुदा। बड़े दुखों से ये जो बच्चे पाले आगे हवाले तुम्हें तुम्हारे हवाले, हवाले तुम्हें तुम्हारे तिथि के मशने दिया मौत का पयाम, उजरे से निकले रोते हुए प्रभा तमाम, धरती पे नाश के लिए बाहर गए इमाम। ज़हरा ने अबू सले पे अपना किया, ज़हरा ने अबू सले पे अपना किया। बस नमाज ईशा की अदा हुई, और उठाने हुए रवि के बजा, उठाने हुए रवि के बजा। हसन ने लाश के माथे पर रख दिया, रो रो के अम्मा मका और बशुआ, कलमों से अपने माथे को शबीर ने मला। पाँव में दम न पाए तो एक कान में, दम न पाए तो एक कान में। और नूरे आवाज़ दो सै दो मौसे, दो सै दो मौसे। सकीना की सदा भाई दम निकलता है मेरा भाई निकलता है अब मेरा भाई रजीना भी कोई जीदा है सका बाबा है ना चचा भाई बाबा है ना चचा भाई बाबा है ना चचा भाई को हटा दीजिए माँ से दे
देखा न जाए भाई से देखा न जाए भाई तेरी मैया एक जो इसी शहंशाह उमंग को पानी न दिया प्यास में उसे बहरे करम को शोर के खौफ किसी का नया शोर के खौफ किसी का नया जिगर बंदे दुल्हा हको बारा क्या शाह कुमार क्या भक्त क्या शाह कुमार तो ये कहते थे शहदी का ये आंसुओं से होता था रुमाल पर रुमाल बरमाते थे क्या हो गए अब्बास से खुशबाल दुनिया में नहीं जीने का फातिमा का दुनिया में नहीं जीने का फातिमा का भाई बसर हो गिलाएगा हमारे अब्बास से मातम में गई जान अब्बास से मातम में गई जान अब्बास से मातम में गई जान भाई को कौन बुझाएगा सकीना की बला कौन बुझाएगा सकीना की बला कौन बुझाएगा सकीना की बला हाथों के तसदुक करे सदपा के सगे जाने बराबर मेरी लाश जाने बराबर मेरी लाश जाने बराबर मेरी लाश जाने बराबर मेरी लाश आँखों को जरा खोलो तो लो भाई में से सकीना तुम्हें देखो आए सूरत है
छुपाई सरपीट के तब कहने लगी शाक जा सरपीट के तब कहने लगी शाक जा सरपीट के तब कहने लगी शाक जा मुझे सूरत ही दिखला ते सबसे जुदा रहो
घर में जा रहा भाई को लेके तैयार घर में जा रहा ये कहे के वाली सकीना गोया से लिपटी वो दौड़ कर शे गर्दो असा से ताकत नदी कलाम की हर चंद प्यासे बोली वचन काम से बोली वचन काम से राइस बना के सफर का है सबने कहीं बताएगा कहीं बताएगा सबने कहीं बताएगा कहीं बताएगा क्या करना है हर माया शहर आओ गले लगो के ये सोबत अखीर है अब आज़ुए खुरबे खुदाए खदीर है तनायब सिपाही मुबारक तस्वीर है तनायब सिपाही मुबारक तस्वीर है सिपाही मुबारक तस्वीर है आए हो ये मरहला जो ये आन खुदा करे जिसका न कोई दोस्त बे बिनो क्या करे न कोई दोस्त बे न कोई दोस्त बे न कोई दोस्त बे बिनो क्या करे जाना है दूर शको जो आना न हो इधर जिद करके रोयो ना हमेशा आती होगा पहले पहले आज शबे पुर खते बिदर सूरज माँ की छाती पर मोया यो माँ की के छाती पर मोया बसे रखे राहत के दिन गुजर गए ये फसल हो रहे यूं बसर करोगे यूं बसर करोगे यूं बसर करोगे कंधे से हाथ जोड़ के बोली मतशन का बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम आंखों से खूब आगे ये कहने लगे इमाम मिल जाएगा ये दरवाजा खुल बचा जाएगा ये दरवाजा खुल जाएगा ये दरवाजा खुल जाएगा ये दरवाजा तुम बचा बीबी न पूछो पूछिए मुसीबत अजीम है मर जाए जिसका बाप होगा शादी मर में जाए जिसका बाप होगा मर जाए जिसका बाप होगा मर जाए जिसका बाप होगा शादी में
कैसे किया जाए। तीसरा पहलू इसका ये है कि नियमतों से मुताबिक सवाल तो नियमत क्या है, तीन पहलू है इसमें और दायरे के तीनों पहलू आपके और हमारे लिए बहुत अहम है, दूसरों के लिए अहम नहीं, इसलिए नहीं हो सकते कि वो मरते ही मर ही जाते हैं, हमको मुंतकिल होते हैं, हमारा इंतकाल होता है, हम इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ जाते हैं, इसलिए हमारे पास मौत का तसव्वुर कुछ और है, औरों के पास और। आप गौर करें कि हमारे मासूमीन बहुत हैं इस सिलसिले में, कौन कौन सी बात को पेश किया जाए मुख्तसर सी तहरीर के लिए। इंसान बगैर विलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी ज़ाहिरी दुनिया में, ये जिंदगी में बगैर विलायत ऐसा ही है कि जैसे चलती फिरती लाशें। विलायत जिसके पास है बस वही इंसान भी है, मुसलमान भी है, उसी से सवाल भी है। औरों से सवाल इसलिए नहीं है कि सवाल की जब बारी आएगी वहाँ तक तो वो पहुँचेगा ही नहीं, जो पहुँचेगा उसी से तो सवाल किया जाए, और पहुँचने वाले मोमिन हैं, और जब पहुँचेंगे तो रोज़े महशर ये सवाल होगा कि बताओ उस नेमत के बारे में, जो नेमत उज़्मा, नेमतें तो इंसान के लिए हर वो चीज़ कि जो उसकी ज़िंदगी में मुआविन साबित हो वो नेमत, जैसे लिबास है, अच्छा लिबास इंसान के लिए नेमत है, ग़िज़ा नेमत है, मकान नेमत है, रिश्तेदार नेमत है, हर एतबार से हर वो चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में मुआविन है, उसकी मददगार हो, उसका ज़िंदगी में मेयार बरकरार रखे, वो उसके लिए नहीं, चाहे वो किसी भी किस्म की तरह आज़ाए जिस्मानी है, सेहतमंद है, आँखें अच्छी हैं, नाक बराबर सूंघ रही है, आँख बराबर है, ये नेमत है, ये नेमत है। मगर इन सब नेमतों के देने के बाद खुदा सवाल नहीं करेगा इनसे मुताबिक, क्यों? इसलिए कि वो इतना कमज़र्फ नहीं हो सकता। इंसान एक दूसरे से मुताल्लिक़ फिर भी सवाल कर बैठेगा, मगर खुदा के लिए ये तसव्वुर नहीं, जो चीज़ आपको देगी बस आपको दे, उसके मुताल्लिक़ सवाल जिस नेमत का होगा वो नेमत उज़्मा, और वो है विलायत अमीरुल मोमिनीन उस नेमत उज़्मा के बारे में बयान किया जाए कि जो सवाल किया गया, उससे सवाल किया जाएगा उस दिन जिस दिन सवाल किया जाना चाहिए, और जवाब दे वही हो सकता है कि जो हकीकत चाहने वाले कि आपने नेमत के उज़्मा से मुताबिक क्या अपनी ज़िंदगी में इसको माना और अपनी ज़िंदगी में तय किया कि अपने आप अपने ऊपर विलायत अली को पेश किया तो फिर कैसा होना चाहिए। अब ये मैं रवायतों की रोशनी में आपके सामने बयान करने लगूँ तो बहुत तफसील हो जाएगी, मगर एक अली का चाहने वाला कैसा होना चाहिए। अब वो जो सारी बातें हैं उनमें से एक और मौला ही का मैं आपके खिदमत पेश करूँ। इंसान अगर अपने आप पर विलायत अली को पेश करता
तो उसका मेयाद क्या होना चाहिए? किसी ने किया है तो उसका मेयाद क्या है? रहती दुनिया में कोई ऐसा बंदा नजर आए कि जिसने अपने ऊपर विलायत अली को पेश किया तो उसका नफ्स कैसा, वो कैसा नजर आता? वो इंसानों में रहते हुए भी इंसानों में सबसे बुलंदतरीन मकाम पा जाता। क्यों? इसलिए कि अली की विलायत को उसने अपनी जात पर पेश किया तो उसकी जात दुनिया से इतनी मुनज़्ज़ह हो गई कि वो अब दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का इंसान नहीं कहलाएगा। अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत में जिसने विलायत अली को अपने ऊपर पेश किया वो खुद नहीं रहा, उसकी जात गुम हो गई, वो सम हो गया अहले बैत। ऐसा कोई बंदा है सिवा सलमान के और कोई? मिन्ना अहलल बैत। हाँ, दर्जे अलग अलग हैं, ईमान के दर्जे हैं। और अब ज़ाहिर है कि जब 10वें दर्जे की बात हुई है तो 9वें दर्जे का भी तो ईमान क्या था आपका मालूम होना चाहिए। तो जिस वक्त आपको शहर बदर किया जा रहा था तो अपने दोनों बच्चों के हाथ थामे हुए, ये कह के अपने घर से चले कि चलो तुम अपने चचा को रुखसत कराओ। वो कौन है? वो जनाब अबू ज़र हैं कि जो 9वें दर्जे को पहुंचे तो वहाँ मिन्ना अहलल बैत कहा गया, यहाँ भाई कहा गया। ये है चूंकि अपनी जिंदगी में विलायत अली को ऐसे गालिब रखा इन्होंने कि वो खुद वो नहीं रहे बल्कि अहले बैत में शामिल हो गए। तो अब इस दर्जे का कोई मुसलमान, कोई मोमिन आज के दौर में मिल सकता? मुमकिन है, मुमकिन है। इसलिए कि वहाँ चूंकि मासूम मौजूद थे इसलिए दर्जात बताए। आज अगर मासूम जाहिर बजाहिर हो जाए तो उनके दर्जात बुलंद हो जाए और वो बताएं कि कौन किस दर्जे पर। क्यों? इसलिए कि ये बात भी तय है कि आपका मेरा जमाने का इमाम चुनके तो इसी जमाने में चूंकि इमाम पर्दा गैबत में है जो वारिस अली है, वो आएंगे तो दुनिया में आपको मालूम है कि ज़ाहिरी तौर पर आपका सिर मुबारक क्या था? गैबत के 10 शव्वाल का दिन, गैबत कुबरा का दिन 10 शव्वाल गैबत कुबरा, 8 रबीउल अव्वल गैबत सुगरा, सन 60 हिजरी। ध्यान में रहेगी बात, सन 60 हिजरी 8 रबीउल अव्वल गैबत सुगरा। नहीं, सन 60 हिजरी तो 60 में वाक़ई करबला 260 हिजरी, बेशक सही 260 हिजरी इमाम की गैबत सुगरा का दिन। 60 ही रह गया तो 60 निकल गया जबान से। तो 260 बरस का पीरियड है तकरीबन पूरे आइन में, करबला से लेके 11वें इमाम तक पूरे आइन में 200 बरस की। आप सोचे और करें कितना हुआ है। किसी की उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर 25 बरस, किसी की 40 बरस, किसी तरह की उम्र, किसी की 28 बरस। सबसे कम सिन हमारे ज़माने का 5 बरस का 260 डिग्री में गैबत सुगरा का था। वहाँ से लेके 329 डिग्री तक गैबत सुगरा, तकरीबन एक कम 70 वर्ष ये गैबत सुगरा का। और उसके बाद इमाम गैबत कुबरा में 10 शव्वाल 329 डिग्री, तब से लेके आज तक और वक्त नामालूम है। इमाम पर गए ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में इमाम का अर्थ नहीं, अगरचे के औलाद मौजूद है, अब गैबत की औलाद है, सिलसिला चल रहा है।
ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में अपनी, तो इसी दुनिया में मैंने आपसे वादा किया है कि आज अगर कोई इंसान चाहे तो वो कहाँ पहुँच सकता है, उस ईमान के दर्जे पर पहुँच सकता है। कोशिश इंसान की होनी चाहिए। वो दौर अइम्मा का था कि जिसमें दर्जात बताए गए। आज चूंकि इमाम मौजूद नहीं है इसलिए दर्जात मुमकिन कोई नहीं कर सकता, मगर इसी दुनिया में इमाम आने के बाद अब्द फरमाएंगे। आपकी हमारी दुनिया ही में से तो कोई खातून इस काबिल होगी कि जिससे अपनी जिंदगी के लिए इमाम इंतखाब करे ज़ौजियत के। तो दुनिया में ऐसे दर्जा इस जमाने और इस जमाने इतना जमाना गुजरेगा और क्या क्या हालात होंगे। बहरहाल उन हालात में भी कोई ईमान के उस दर्जे पर फायद होगा कि जहाँ इमाम इसी दुनिया से अपनी ज़ौजियत के लिए इंतखाब करना। तो कोई ऐसे माँ बाप भी होंगे कि जिनकी औलाद इस काबिल होगी। तो ये फिक्र है और ये दावत फिक्र इसलिए है कि इंसान को इंसान बनाना तो बहरहाल उनका काम था और उन्होंने बनाया, मगर एक इंसान को इंसान ही नहीं बनाया, मुसलमान बनाया, मुसलमान से मुसलमान भी बनाया। उन्हीं की मोहब्बत है कि जो सलमान के दर्जे तक पहुंचाती है। मोहब्बत के अहले बैत में मुखलिस हो जाए, दुनिया की फिक्र ना करें, दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह न करें, इसलिए कि अहले बैत क्या कहेंगे इसकी परवाह होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मोहब्बत से मुताल्लिक सवाल किया जाना है। कोई और चीज का सवाल नहीं है, क्योंकि खुदा किसी और नेमत के बारे में सवाल नहीं करेगा सिवाय अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल करेगा। तो ये सवाल का जवाब अगर हम देने के काबिल हो जाए तो हमारी जिंदगी का ऐसी ही बंदों में से एक बंदा ये जिसके साल सवाब की मजीद है और वो जाहिर है कि वो अपनी जिंदगी में जो कुछ उन्होंने किया उनमें से एक कारनामा उनका आपके सामने आशुखाना मौजूद है। बेहतरीन आर्किटेक्ट अगर हो तो दुनिया में अपने नुकोश छोड़ के जाए और ये खिदमत की उन्होंने कि ऐसे ऐसे बता के दुनिया भर में कुतुबशाही दौर से लेके नमी दौर से लेके सारे अखबार में कैसे कैसे खूबसूरत मुबारक देखे गए हैं। उनमें भी फिर अपने जहन की इख्तिराम पैदा करके और कुछ नुकोश ऐसे बनाए कि जो इनफरादी हो, तो फिर उनका कारनामा सामने है मौजूद कि वो अलम मुबारक और उनकी खुसूसियत अकीदत उनकी कहिए या मौला से मोहब्बत कहिए कि अहले बैत से वाबस्तगी के बाद किसी एक ज़ात से ख़ास उनसियत हो जाती है और वो उनसियत के बाद नतीजा अपनी ज़िंदगी में देते हैं कि जब उनसे क़ुर्बत है, उनसे उनसियत है, तो उन्हीं का जिक्र भी अपनी ज़िंदगी में मुनक़िद करवाना और ये बताना कि हमारा ख़ास रिश्ता है इन ज़वात मुक़द्दसात से। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक कारनामा उनकी ज़िंदगी का है वो हुसैनिया खानदान है जो भी आर्किटेक्ट हो ही रहे और चूँकि वहाँ एक अलम मुबारक जो अलम बीवी की अलम मुबारक की शक्ल में मौजूद था जो जनाब सकीना के नाम से मंसूब था, तो ज़िंदगी में उन्होंने अपनी एक काविश की और उन्होंने जो मुख्तलिफ रवायतें शहजादी की शहादत की उनमें से 6 सफ़र भी है। इसलिए शब शहादत जनाब सकीना वो अलम मुबारक जो आज हुसैनिया नवाब नाज़िर बहादुर में जो सवारी दिखाई जा रही है वहाँ शहजादी तो शहजादी से बड़ी मुसीबत थी, तो उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि मैं ज़ियारतों में जा रहा था, तो उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि कोई तबर्रुक अगर शहजादी के रौज़ा मुबारक से मिले तो हमारे लिए बायस शरफ हो। तो उन ख्वाहिश उन्होंने मुझसे की कि आप जा रहे हैं या हमारी किस्मत में अभी तो हुआ नहीं जाना, तो मेरे लिए आप कोई तबरुक वहाँ से, चूँकि मैंने सुना है कि वहाँ की शरीयत मुबारक तब्दील की गई है, मुमकिन है वहाँ से कुछ तबरुक आपको मिल जाए। मेरी दुनिया में जो खिदमत दुनियावी एतबार से अदा करनी पड़ेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपका पैगाम पहुँचा तो दूँगा, मुमकिन है कि कोई तबरुक आपको मिल जाए आपकी नीयत के एतबार से। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने जाकर उनसे कामों से बताया
बाद तो उन्होंने बड़ी इज्जत एहतराम से एक खास उनका ऑफिस का शोभा है जरिए हरम मुबारक के अंदर जरिए मुबारक के पीछे तो जनाब सकीना के वक्त वहाँ बड़ी खास इज्जत एहतराम से बिठाया गया, चाय पेश की गई और जो खुदाओं में सबसे बड़ा खुदाम था वहाँ उन्होंने बातचीत करते हैं चूँकि मेरे साथ मकसद भी थे पैदल बाबा, तो उन्होंने मेरी बात को पहुँचाया अरबी जबान में। उन्होंने जवाब में ये कहा कि देखिए मौलाना हमारे पास चूँकि यहाँ का कानून बड़ा सख्त है और जो जरिए मुबारक तब्दील की गई है वो औकाफ को महफूज कर दी है, लिहाजा शरीफ का तो कोई हिस्सा आपको मिल नहीं सकता। मैंने कहा एक मुहिम है जिनकी बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने अब शहजादी के नाम की मजलिस भी रखी और बड़ी अकीदतमंदी से उन्होंने आप तक ये पैगाम मेरे जरिए से पहुंचाया है। अगर कोई तबरुक तो उन्होंने कहा आप तशरीफ रखें, हम एक तबरुक आपको देंगे। तो मैंने सोचा कोई शायद ऐसा तबरुक हो कि तो लाकीमत और लाकीमत तबरुक मिला भी, और वो है असल तुर्बत की खाक। जनाब सकीना असल तुर्बत की खाक चुटकी भर उन्होंने दी और ये कहा कि ये खास हज़ार मुबारक की ये आप उनको देता। तो मैंने वो लाके पेश किया और चुनाचे वो खाक आज अलग उन्होंने खुद मुझसे पूछा कि इसे कैसे महफूज किया जाए, कहाँ रखा जाए। तो मैंने कहा मशवरे के तौर पर, क्योंकि हमारे पास शहर में कई अलग मुबारक ऐसे हैं कि जिनमें तबरुकात महफूज हैं, उनमें से बारगाह मुबारक का आलम है, आज हुसैनी आलम ये हुसैनी आलम है और नाले मुबारक है, तो नवाज सबका मुबारक है, लेकिन तबरुकात महफूज हैं। उन्होंने कहा यही मुमकिन है और इसका एहतराम के लिए यही मुनासिब है कि एक टिप्पी की शक्ल में आप इसे अलम में जाएं, ताकि इस तबरुक को आपकी नस्ल दर नस्ल ये एहतराम बाकी रहेगा। और ज़ाहिर है कि इससे एहतराम की जगह और कोई हो नहीं सकती हमारे पास, आशो खानी में महफूज रहेगी, अलम में मुबारक में महफूज रहेगी। और चुनाचे मुझे भी आप कुछ तबरुक इसमें से इनायत करना, चुटकी भर से कुछ हिस्सा मुझे दिया और बाकी अलम मुबारक में महफूज कर दिया गया। वो असल तुर्बत की आग है जनाब सकीना। बस मैंने किया हकीकत हो तो ज़ाहिर है कि दुनिया में इनाम मिलता, दुनिया में ये इनाम है जनाब सकीना से मोहब्बत का। और असल तुर्बत की खाक उन पर नसीब हुई, उस बीबी की तुर्बत की खाक नसीब हुई कि जिस बीबी की तुर्बत की खाक को हटाने के लिए सैयदे सज्जाद के हाथ, आप सोचिए अपने हाथों से कितनी मिट्टी हटाई, Allah
دعائے غم امام حسین کے اور امام کے ظہور میں تعبیر فرما ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما اور اللہ کی خدمت میں جمع سے ایک مرتبہ سورہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمیں محمد تقی ملک صاحب اللہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجا صلی اللہ تعالی مخرجا نورک فجر اللہ من انصارک وامانک السلام علیکم اہل بیت النبوہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ